Hello students, in this video we are going to solve the exercise of chapter 18. The name of the chapter is Pollution of Air and Water, and this chapter is taken from the class 8 science. So the first type of question is give one term for the following. Okay, you have to give the one word for the following statement. So the first statement is pollutants not decomposed by microorganisms. Okay, the pollutants which cannot be decomposed by microorganisms, they are called as non-biodegradable. Okay, so the answer is non-biodegradable. Okay, it is asking that जो pollutants माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं तो हम उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स बोलते हैं ओके सेकंड statement is chemical compounds used in refrigeration. जो केमिकल हम रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ करते हैं आपको उसका नाम देना है तो हम उसको बोलते हैं कूलेंट ओके कूलेंट ओके सो द टर्म फॉर केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन उसको बोलते हैं कूलेंट नाउ द थर्ड वन इज द ट्रैपिंग ऑफ हीट बाय CO2 लेयर इन द एयर ठीक है एयर में जो CO2 है वो क्या करती है हीट रेडिएशन को ट्रैप करती है इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट okay so the answer is greenhouse effect next question is the accumulation of pesticides in our body okay हमारी बॉडी में पेस्टिसाइड जो है वो इकट्ठा होते जाते हैं एक्यूमुलेट होते जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं व्हाट इज इट कॉल्ड तो इसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन इट इज कॉल्ड एज बायो एक्यूमुलेशन okay now the next statement is excessive growth of algae in a water body किसी वाटर बॉडी में जब एल्गी जो है वो बहुत एक्सेस अमाउंट में ग्रो करती है तो आप उस फेनोमेनन को क्या बोलते हो इट इज कॉल्ड एज एल्गल ब्लूम okay whenever due to pollution when the organic compounds increase in any water body then the algae starts to grow very fastly and then it is called as algal bloom. Now treatment of water with chlorine to kill the bacteria in it. वाटर में जो बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए हम क्लोरीन टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसीजर को इस मेथड को हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं क्लोरीनेशन so this is done now we will move to the next type of question and this is fill in the blanks with the help of words given in bracket after each sentence आपको ब्लैंक्स फिल अप करने हैं और जो वर्ड्स हैं वो आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं इन ब्रैकेट से ही वर्ड चूज करके आपको ब्लैंक्स में फिल अप करने हैं ओके सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हेन एयर इज contaminated by pollutants the first one will be pollutants okay pollutants which have a harmful effect on both the living living and non-living it is referred to as air pollution okay so the statement will be statement आपका हो जाएगा when air is contaminated by pollutant substances which have a harmful effect on both the living and non-living it is referred to as air pollution now we will see the second statement is many dash are responsible for causing dash pollution. Petroleum dash are a major source of dash pollutants like dash and dash. Okay, so you have to choose the correct
words from the given words. Okay, so the many dash, many क्या हो जाएगा, many industries. Okay, many industries, this will be the one. First, many industries are responsible for causing air pollution. Air will be the second. Petroleum refineries. Okay, petroleum refineries. Third, are a major source of what? Major source of gaseous. Okay, gaseous pollutants. It will be fourth word. Pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Okay, तो आपका statement हो जाएगा many industries are responsible for causing air pollution. Petroleum refineries are a major source of air gaseous pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Now we'll see the next third statement. In third statement, you have to fill up uh, like while dash your teeth, leaving the dash running may waste several dash of water. So what will you fill? In the first blank you have to fill while brushing. Okay, this will be the first, while brushing your teeth, leaving the tap. Okay, it will be the second, tap running may waste several liters. Okay, third, liters of water. तो आपका statement complete statement हो जाएगा while brushing your teeth, leaving the taps running may waste several liters of water. Now we will see the fourth statement. Fourth statement is saying that water which is suitable for dash is called dash water. Okay, water which is suitable for drinking. It will be the first word, and water which is suitable for drinking is called as potable water. ठीक है, जो वाटर हमारे लिए सेफ होता है ड्रिंकिंग के लिए, हम उनको उसको क्या बोलते हैं? पोटेबल वाटर. सो द कंप्लीट स्टेटमेंट आपको हो जाएगा वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग is called as potable water. Now the fifth statement, water which looks clean still has disease carrying dash and dash impurities. Water which looks clean, ऐसा पानी जो आपको साफ दिख रहा है लेकिन उसमें भी क्या हो सकता है? डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होते हैं. यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आइज. तो अगर आपको देखने में पानी क्लीन लग रहा है फिर भी उसमें क्या हो सकते हैं? डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजोल्व इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटीज जो डिजोल्व होंगी वो भी आपको दिखाई नहीं देंगी. तो आपका कंप्लीट स्टेटमेंट हो जाएगा वाटर विच लुक्स क्लीन स्टिल हैज डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजोल्व इम्प्योरिटीज. So this is all for fill in the blanks. Now we'll see the next type of question. It is match the items of column A with those of column B. इसमें क्या करना है? आपको column A से column B को match करना है. The first is sulfur dioxide. इसको आप किससे match करोगे? Acid rain से. Okay, acid rain से. Carbon dioxide, इसको आप किससे मैच करोगे? ग्रीन हाउस गैस. कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि सोलर रेडिएशन को ट्रैप करने में हेल्प करती है. नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड. ओके. एंड फोर्थ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये क्या करती है? इट डैमेजेस ओजोन लेयर. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड से जो है एसिड रेन होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है. कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देती है, एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये जो है ओजोन को डैमेज करती है. ओके, सो दिस इज मैच द आइटम्स. नाउ विल सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, and it is find out the wrong statements and write them in their correct form. इसमें आपको wrong statement को find out करना है, उसकी जगह पे सही statement write up करना है. ठीक है. First statement is we can survive for some time without air but we cannot survive even for a few minutes without food. ठीक है, ये कह रहे हैं कि एयर के बिना तो हम कुछ देर तक ज़िंदा रह सकते हैं मगर खाने के बिना हम बिल्कुल कुछ मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, एयर की जगह पे फूड हो जाएगा
एंड फूड की जगह पे क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, क्योंकि हम फूड के साथ, फूड के बिना तो हम कुछ देर रह सकते हैं, मगर एयर के बिना हम फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स भी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, और ये पहले क्या था, ये रॉन्ग था। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। अ brick kiln emits lots of smoke and other harmful gases causing air pollution. जहाँ पे ब्रिक्स बनती हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्मोक और हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ओके, दिस इज ट्रू। तो नो चेंज इज रिक्वायर्ड हियर। सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट वाला क्या था, फॉल्स था, तो इसको आपने करेक्ट किया था। नाउ विल सी द थर्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड is produced by complete burning of fuels such as coal, petrol and diesel. कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जब आप कंप्लीटली पेट्रोल, डीजल एंड कोल को बर्न कर देते हो। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसको करेक्ट कैसे करेंगे? इनकम्प्लीट, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब कार्बन मोनोऑक्साइड कब निकलती है, जब किसी भी चीज़ को या कोई भी फ्यूल को आप इनकम्प्लीटली बर्न करते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। तो आप स्टेटमेंट सही कैसे करोगे, कंप्लीट को इनकम्प्लीट बना दोगे। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्लोरीनेशन इज अ कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर किलिंग जर्म्स इन वाटर। क्लोरीनेशन जो है एक बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाने वाला केमिकल मेथड है जिससे हम वाटर में प्रेजेंट जर्म्स को किल करते हैं। सो दिस इज़ ट्रू। हम ऐसा करते हैं, बहुत ही कॉमन मेथड है। हम वाटर में प्रेजेंट होने वाले जर्म्स को किल करने के लिए हम क्लोरीन टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं और जर्म्स को रिमूव करते हैं। ओके, सो दिस इज ट्रू। नाउ द लास्ट स्टेटमेंट इज वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। जो पानी पीने के लिए सुटेबल होता है, क्या हम उसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं? नहीं, हम उसको पोटेबल वाटर कहते हैं। वी से इट पोटेबल वाटर। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसको आप करेक्ट कर लेंगे। सॉफ्ट की जगह पे आप क्या लिख देंगे, पोटेबल। सो इट विल बी राइट, ठीक है, तब ये सही हो जाएगा। वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर। ओके, so this is all for this video, and in the next video we will solve some more questions. Till then, thank you.